Shri Dhanvantaraye Namaha. My greetings to everyone present here. Myself, Miss खुशी नितिन ठाकरे from आयुपीडिया और मैं आप सबका आज हमारे तंत्र युक्ति अध्ययन में स्वागत करती हूँ. Undoubtedly, we are all aware of the importance as well as the benefits of understanding and learning of Tantra Yuktis. Then may that be a practicing Vaidya, a PG student or a UG student. As far as we are connected to Sahitas, it makes the understanding of Tantra Yukti an equal necessity. So let's take a quick glance at our topic of discussion. त्रायते शरीरम अनेन इति तत्रम शास्त्रम चिकित्सा च तस्य युक्तयो योजनाः तंत्रयुक्तयः. Tantra Yukti is the methodology or technique of studying a tantra to interpret correct, unambiguous meaning for the precise practical application. Tantra here means Shastra, that is, guiding principles of Ayurveda, whereas Yukti is a methodology in which multiple observations are correlated to understand the appropriate meaning. Understanding Tantra Yukti is very much important for proper understanding of Ayurveda, which is termed as Shastra Adhigamaha. Acharya Charak also terms it as Prabodhanam Ambujava Syarkaha, which says, just like the lotus blooms in sunlight, with Tantra Yukti, the meaning of Ayurvedic texts is elaborated, where the meaning of difficult topics becomes lucid. And that's what we are here for today. In these sessions of Tantra Yukti Adhyayan, we are going to discuss each Charakokta Tantra Yukti in detail. Now let's have a look at the features of series. With 45 plus hours of Guru Sanithya, we have an opportunity to learn from 13 Vaidya Gurus with extra lectures and sessions for complete understanding. Here, we are going to learn each Charakokta Tantra Yukti in detail. Now let's move forward towards the perks of this session. In these sessions, we are going to cover 36 Tantra Yuktis along with 4 extra Tantra Yuktis of Bhatta Harishchandra by respected Vaidya Abhijit Saraf Guruji. Here, we are going to cover all the practical approaches with extra sessions for better understanding. Let's move ahead. गुरुवर्य वैद्य अभिजीत सराफ जी कोट्स बृहत्त्रयी का हर एक वाक्य क्लिनिकल है हर एक वाक्य. Now let's get ahead with this quote. For this Adhyayan session, we are under the great guidance of our gurus, Vaidya Meghana Bakre ji, Vaidya Prayag Sethia ji, Vaidya Saurabh Kokatnur ji, वैद्य सुरक्षा शेट्टी जी, वैद्य हरिप्रिय जी, वैद्य ऋतु जी, वैद्य रेणुका गायाल जी, वैद्य अभिजीत सराफ जी, वैद्य डॉली बुधभट्टी जी, वैद्य धर्माधिकारी सर gave her the name आत्रेयी, वैद्य वृषाली देशपांडे जी, वैद्य निषाद फाटक जी, वैद्य पुष्पा नेमाडे जी, वैद्य निशांत मल्होत्रा जी, वैद्य दीपिका मिन्हास जी. There are 4.4 lakh BMS doctors in India, out of which only 1 out of 35 BMS aspirants are doing Ayurvedic practice. Now, why is that? That is because 98% of Vaidyas and students do not know about Tantra Yuktis. And to emphasize on the same, we are conducting these sessions of Tantra Yukti Adhyayan. We also have a YouTube video on Tantra Yukti, the missing link of Ayurveda. These series include guidance of 14 plus great gurus with special question and answer sessions and discussions. We are having recordings provided for next 1 year
and you shall get an authorized certificate for the same. We shall also conduct a question and answer session after each lecture that shall help you to clear all your doubts through one-on-one interaction, learning, and practical approach to Sahita Vachan. Sir, we'll see if you want to continue to see it. Okay. So let's finally begin with today's session. I once again welcome you all and invite respected Vaidya Meghana Bakreji. She is a co-founder of Swasthya Sadhanam Mahaayu Ayurved Panchakarma and Research Center at Pune. She is founder and secretary at Ananta Ayurved Pratishthan, Pimpalgurav, Pune. She is a coordinator at Pratipadi Coast Project of Ayurveda under renowned Ayurveda practitioner Vaidya Dilip Gadge sir. Meghna ma'am has been practicing 19 years of experience as an Ayurveda practitioner and advisor to external organizations. She has 17 years of experience in Ayurvedic medicine manufacturing. She has 14 to 15 years of experience of teaching Ayurveda Sahita Granthas with explanation. She has 12 years of experience in child psychology counseling and parenting counseling. She has received an award for Best Paper Writing by Dr. Ranade Subhash and Dr. Ranade Sunanda in Bal Rog Visheshanka of Ayurved Patrika edition, July 2022. She has received first prize in Kai Vaidya Ma V Kulhatkar Ayurvediya Aushadha Nirman Dhanvantari Pratiyogita in year 2000. She has received an award for Best Paper Writing in Ayurveda magazine of Tilak Ayurved Mahavidyalaya, Pune in June 2019. It is indeed an honor to have an opportunity to learn from her today. So let's begin with the session. Ma'am, please. Okay, let's begin. अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मेरे गुरुजन वैद्य अनंत धर्माधिकारी जी, वैद्य दिलीप गाडगिल सर, वैद्य प्रमा जोशी मैडम, इन सभी को वंदन करते हुए मैं आज के ये व्याख्यान की शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले आयुपीडिया इन्होंने जो ये व्याख्यान माला आयोजित की है तंत्रयुक्ति अध्ययन इस विषय को लेकर, तो इन सभी की मैं बहुत आभारी हूँ, क्योंकि ये तंत्र युक्ति ये जो विषय है ये बहुत ही गहन विषय है और जो हमारे ग्रंथ है आयुर्वेद के जो सभी ग्रंथ है, चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है, अष्टांग हृदय संहिता है, इन सभी को जानने के लिए, इन सभी की रचनाओं को जानने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले ये आयुर्पीडिया की जो कोई टीम है उन सभी का मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ और उनका भी यहाँ पे मैं मेरे व्याख्यान में स्वागत करती हूँ। यहाँ पे उपस्थित बाकी सभी वैद्य जो मेरे सह अध्यायी है इसी व्याख्यान माला में जो मेरे सह अध्यायी है वह और यहाँ पे उपस्थित बाकी जो विद्यार्थी है उन सभी का मैं इस व्याख्यान माला में स्वागत करती हूँ और उन सभी का अभिनंदन करती हूँ। आज कल ही हम सभी ने मकर संक्रांति मतलब सूर्यों का उत्तरायण में प्रवेश करना, इसका ये जो हमारा सन है, ये जो हमारा
इस मकर संक्रांति की शुरुआत हुई है या फिर उत्तरायण की शुरुआत हुई है जो सूर्य की, तो इसके लिए भी मैं सभी को हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज इस मेरे व्याख्यान से इस जो तंत्रयुक्ति अध्ययन की व्याख्यानमाला की शुरुआत होने जा रही है, उसका श्री गणेशा होने जा रहा है। तो आयुपीडिया का जो विजन है वो मुझे बहुत ही पसंद आया। उनका कहना है कि इस तंत्रयुक्ति के अध्ययन से और उसके बाद होने वाले जो अध्ययन वो शुरू करने जा रहे हैं, उससे वो वैद्य तैयार करना चाहते हैं, आचार्य तैयार करना चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ा हेतु है, बहुत विशाल उनका विजन हमें यहाँ पे दिखाई देता है। तो इसलिए उनका अभिनंदन। तो मैं इस व्याख्यानमाला की शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले हम तंत्रयुक्ति, ये जो शब्द है उसे देखेंगे। इस व्याख्यानमाला में अभी जो इंट्रोडक्शन दिया उसमें भी उन्होंने 2-3 श्लोक जो तंत्रयुक्ति के बारे में है उसका उल्लेख किया, तो उससे हमें तंत्रयुक्ति का महत्व समझ में आता ही है। इसलिए मैं वो श्लोकों को अभी उद्धृत नहीं करने वाली इस लेक्चर में। इस लेक्चर में हम तंत्रयुक्ति ये शब्द क्या है वो देखेंगे, और फिर उसके बाद जो मेरे लिए जो तंत्रयुक्तियां दी गई है, अधिकरण, उपदेश और विधान तंत्रयुक्ति, उसमें से जो अधिकरण तंत्रयुक्ति है वही आज सिर्फ हम देखने वाले हैं। तो तंत्रयुक्ति, तंत्रयुक्ति क्या है, मैंने यहाँ पे एक इंग्लिश में, आंग्ल भाषा में ये व्याख्या की है। वे टू स्क्रिप्ट और डिकोड एन इमेंस नॉलेज। इमेंस मतलब बहुत बड़ा, बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ा विशाल, ऐसा जो कोई नॉलेज है, जो कोई जो कोई नॉलेज या फिर जो कोई हमारा अध्ययन है, वो उसका स्क्रिप्टिंग करना, वो लिखना, उसका संक्षिप्त स्वरूप हमारे सामने लाना, इसका मतलब होता है तंत्रयुक्ति। उसका जो लिखने की जो शैली है उसे तंत्रयुक्ति कहा जाता है, और वही नॉलेज जो सूत्र रूप में है उसे डिकोड करना, मतलब वो समझ लेना, उसमें जो कुछ बातें बताई है जो संक्षिप्त में है उसे योग्य तरीके से, उसके जो बिटवीन द लाइंस है उसे समझना, ये तंत्रयुक्ति है। और एक डेफिनेशन मैंने की है, कंस्ट्रक्शन, कंपोजिशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ द थ्योरी। तो जो कोई थ्योरी, मतलब जो कोई हमारा अध्ययन है, जो कुछ नॉलेज है, उसे कंस्ट्रक्ट करना, उसे तैयार करना, उसकी वाक्य रचना करना, कंपोजिशन करना, और उस वाक्य रचना को भली भांति समझना, इसे तंत्रयुक्ति कहा जाता है। आगे देखेंगे, इसमें 2 शब्द है। पहला शब्द है तंत्र और दूसरा शब्द है युक्ति। तो सुश्रुत संहिता में ये व्याख्या आई है, त्रायते शरीरम अनेन इति तंत्रम शास्त्रम चिकित्सा च। तो तंत्र के पर्याय क्या है, शास्त्र और चिकित्सा। और तंत्र शब्द क्या है, त्रायते शरीरम अनेन इति तंत्रम। तो जिससे शरीर का त्रायण होता है, जिससे शरीर का नियंत्रण होता है, उसे तंत्र कहा जाता है। और तस्य युक्तयो योजनाः तंत्रयुक्तयाः, उसकी योजना करना, उसे कंपोज करना, उसे तंत्रयुक्ति कहा जाता है। ताः अधिकृत्यो अध्यायाः तम,
क्योंकि सुश्रुत संहिता में तंत्र युक्ति नामक अलग अध्याय की व्यवस्था की गई है। तो इसलिए ताः अधिकृत्य कृतो अध्यायाः इति तंत्रयुक्ति अध्यायाः। तंत्रयुक्ति जिसका अधिकार है वो अध्याय मतलब तंत्रयुक्ति अध्याय। अभी ये तंत्रयुक्ति में दो शब्द है, तंत्र और युक्ति। तो पहला जो शब्द है तंत्र, ये एक योग रूढ़ संज्ञा है। योग रूढ़ का मतलब क्या होता है? यौगिक और रौढ़िक संज्ञा। यौगिक इसका मतलब है कुछ दो तीन शब्दों को एक साथ करते हुए उस शब्द का अर्थ समझना, इसे यौगिक संज्ञा कहा जाता है। योग करना मतलब जोड़ना। तो दो तीन शब्द एक साथ जिसमें जुड़ जाते हैं और कुछ अर्थ बनता है, उसे यौगिक संज्ञा कहा जाता है। जैसे एक शब्द मैंने नीचे दिया है पंकज, तो पंकज इसका मतलब कमल। तो पंकज ये शब्द जो है ये योग रूढ़ शब्द माना जाता है। पंके जन्मति इति पंकजाः, ये यौगिक शब्द है। पंके मतलब जो कीचड़ है उसमें जो जन्म लेता है उसे पंकज कहा जाता है। इसका मतलब भी कमल ऐसा ही है। और जो रूढ़ शब्द है कि पंकज मतलब कमल, तो ये रूढ़ शब्द है, मतलब जो जन सामान्य लोगों को, सामान्य लोगों में वो रूढ़ हो गया है, सामान्य लोगों को समझ में आता है, उसे रूढ़ शब्द कहा जाता है। तो उसी प्रकार तंत्र ये शब्द यौगिक शब्द भी है और रूढ़ शब्द भी है। तंत्र मतलब शास्त्र, ये हम सब सामान्य अर्थ उसका समझते हैं, तो ये रूढ़ शब्द है। और तंत्र मतलब त्रायते शरीरम अनेन इति तंत्रम, तंत्रणात् शरीर धारणात् तंत्रम। ये अर्थ सभी आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखा हुआ है। तंत्री इसका मतलब है कुटुंब धारणे। ये कुटुंब धारणे, ये जो शब्द आता है ये नीलमेघ संहिता में आता है। तंत्री इति कुटुंब धारणे, ऐसा शब्द नीलमेघ संहिता, नीलमेघ जो ग्रंथ है वो ग्रंथ भी तंत्र युक्ति के ही आधार पर लिया गया है। तंत्र युक्ति ही उसका अधिकरण है, उसका विषय तंत्र युक्ति है। ये जो ग्रंथ है ये भिषगाचार्य ग्रंथ नीलमेघ नामक जो भिषगाचार्य थे उन्होंने लिखा हुआ है, और ग्रंथ सारथी नामक ग्रंथावली ने उसे प्रसिद्ध किया है। ये अष्टांग हृदय पर आधारित ग्रंथ है और वयस्करागार निवासी शंकर शर्मा इस व्यक्ति ने उसको संस्कारित किया है। तो ये जो ग्रंथ है उसमें सभी तंत्र युक्तियों के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। हर एक तंत्र युक्ति को लेकर अलग अलग उसके जो कुछ उदाहरण है उसे बताया गया है। तो बहुत अच्छा ग्रंथ है, सभी को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। जिनको तंत्र युक्ति के बारे में और जानकारी चाहिए तो उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो उसमें क्या लिखा है? तंत्री मतलब कुटुंब धारणे, जिससे कुटुंब का धारण होता है उसे तंत्री ऐसे कहा जाता है। तंत्र इस शब्द की और एक व्याख्या हमारे ग्रंथ में की गई है, वो चरक संहिता में दी है। तो हम बीच बीच में हम ग्रंथ के भी सूत्र देखेंगे, जिससे जो लोगों को बाद में अध्ययन करना है तो ग्रंथ का अध्ययन कैसे किया जाता है, या फिर तंत्र युक्ति के द्वारा ग्रंथ अध्ययन कैसे किया जाए, उसके बारे में आपको समझ में आएगा। इसलिए मैं कुछ जो श्लोक है वो ग्रंथ में से निकाल के आपको दिखाने वाली हूँ। तो पहला श्लोक जो है चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय 30, उसमें 31 ये श्लोक है। इसमें तंत्र की व्याख्या दी गई है।
क्या लिखा है? तत्र आयुर्वेदः शाखा विद्या सूत्रम ज्ञानम शास्त्रम लक्षणम तंत्रम इति अर्थांतरम। तो तंत्र शब्द के अनर्थांतरम, अनर्थांतरम इसका मतलब है जिसका अर्थांतर नहीं है, न अर्थांतरम इति अनर्थांतरम, मतलब पर्याय, जिसका अलग अर्थ नहीं है उसे पर्याय कहा जाता है। तो तंत्र शब्द का तंत्र शब्द के पर्याय क्या क्या है? आयुर्वेद, शाखा, विद्या, सूत्र, ज्ञान, शास्त्र, ये सभी तंत्र इस शब्द के पर्याय यहाँ पे लिखे गए हैं। ये जो अभी मैंने जो श्लोक निकाला है, ये श्लोक खास करके इसके लिए लिखा गया है कि इसमें तंत्रार्थ, स्थान स्थानार्थ, अध्याय अध्यायार्थ, वाक्य वाक्यार्थ, ये सभी पूछे जाते हैं। किसको पूछे जाते हैं? तो प्रतिवादी वैद्य को पूछे जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इस वैद्य का नॉलेज कितना है। तो इसके लिए ये अलग अलग, ये जो तंत्रार्थ, स्थान स्थानार्थ, इस प्रकार ये जो वर्णन किया गया है उसमें से तंत्र की व्याख्या यहाँ पर दी गई है। तो जिसको तंत्र की व्याख्या पूरी तरीके से मालूम है वही तंत्र अच्छी तरीके से जान सकता है। ये यहाँ का तंत्र शब्द का महत्व भी हमें यहाँ पे समझ में आता है। आगे लिखा है युक्ति। युक्ति शब्द जो है ये युज इस शब्द से तैयार हो जाता है। युज ये धातु है और वो युज्यते अथवा योजयति ऐसे चलता है। युज्यते ये पहले गण का धातु है और वो आत्मनेपदी चलता है। योजयति, ये योजयति मतलब संयमन करना, या और युज्यते मतलब योजना करना। तो ये इन दो गणों में वो चलता है, पहला गण और 10वां गण, और उसे त प्रत्यय लगा है। त प्रत्यय मतलब जो कर्मणि भूतकालवाचक धातु साधित विशेषण लगा के उसे स्त्रीलिंग बनाया गया है और उससे युक्ति ये शब्द तैयार हो जाता है। फिर से नीलमेघा आचार्य कहते हैं कि युक्ति इसका मतलब उपायवाची, जिसमें उपाय बताया गया है उसे उपायवाची कहा गया है। तो इस प्रकार तंत्र युक्ति इस शब्द की व्याख्या यहाँ पे हमने देखी कि तंत्र ये योगरूढ़ संज्ञा है और युक्ति उसे इस तंत्र की योजना जिसके द्वारा की जाती है उसे तंत्र युक्ति कहा जाता है। ये एक सिंपल डेफिनेशन यहाँ पर हमारे सामने आ गई। आगे है चरक सिद्धिस्थान 12वें अध्याय में हम थोड़ा तंत्र युक्ति के बारे में जानेंगे। चरक सिद्धिस्थान चरक संहिता में सिद्धिस्थान के 12वें अध्याय में एकदम कुछ लास्ट के श्लोक है, वहां पे तंत्र युक्ति के बारे में लिखा गया है। अभी जो आगे जो मैं श्लोक बताने जा रही हूं, तो ये श्लोक जो है ये सभी दृढ़बल आचार्य ने संपूरित किए हैं। तो हमें मालूम है कि चरक संहिता ये जो ग्रंथ है उसका चरक संहिता का के जो उपदेष्टा है वो आचार्य पुनर्वसु आत्रेय है, और चरक संहिता जो लिखी गई है वो चरकाचार्य अग्निवेश तंत्र उसे कहा जाता है, और उसका संपूर्ण जो है और उसका संस्करण जो है वो चरकाचार्य ने और दृढ़बल आचार्य ने किया है। तो उसी का वर्णन यहाँ पे आता है। वही दृढ़बल आचार्य ने यहाँ पे लिखा है, इदम अन्यून शब्दार्थम तंत्र दोष विवर्जितम षड्विंशताः विचित्राभिभूषितम तंत्र युक्ति भी। तो इसका मतलब ऐसा है कि इदम ये जो ग्रंथ है ये कैसा है? अन्यून शब्दार्थम, जिसमें शब्दों का अर्थ अन्यून है, न्यून नहीं है,
न्यून मतलब कम, या फिर अयोग्य। अयोग्य ऐसा शब्दों का अर्थ नहीं है। और ये तंत्र कैसा है? दोष विवर्जित है। इस ग्रंथ में, इस तंत्र में दोष नहीं है। जो तंत्र दोष बताए गए हैं ये भी तंत्र युक्ति का ही भाग है, या फिर तंत्र को समझने का ही भाग है। तंत्र गुण, तंत्र दोष, ताच्छिल्य, ये सभी जो है इसके द्वारा ही हम ग्रंथ को समझ पाते हैं। तो ये जो ग्रंथ है ये तंत्र दोष विवर्जित है, तंत्र दोष इसमें नहीं है। और ये कैसा है? ये अभिभूषित है। किससे अभिभूषित है? विचित्रा भी ही, तंत्र युक्ति भी ही। तो विचित्रा भी ही इसका मतलब है विचित्रार्थ न्याय युक्ति भी ही, जिससे हमें समझ में आता है कि अलग अलग न्यायों के द्वारा या फिर अलग अलग अर्थों के द्वारा ये ग्रंथ यहाँ पे भूषित है। तो हमें ये ग्रंथ तंत्र युक्ति के द्वारा समझना है, ये यहाँ पे स्पष्ट हो जाता है। दृढ़बल आचार्य यहाँ पे कहते हैं कि हमें अगर ग्रंथ समझना है तो हमें तंत्र युक्ति का आधार यहाँ पे लेना चाहिए। दृढ़बल आचार्य ने इस ग्रंथ का विस्तार किया और जो संक्षेप ग्रंथ है, जो संक्षेप भाग है उसका विस्तार किया, और जो अति विस्तारित भाग है उसका संक्षेपण करते हुए यहाँ पे 17 चिकित्सा स्थान के अध्याय और 12 सिद्धि स्थान के अध्याय और 12 कल्प स्थान के अध्याय, ऐसे टोटल 41 अध्यायों की पुनर्रचना की। मैं ये पाठ इसलिए ले रही हूं कि हमें समझना है कि तंत्र युक्ति का उद्गम कैसे हुआ। ये भी मैं इस मेरे व्याख्यान में आपको बताना चाहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने एक टाइमलाइन दिखाई है। ये टाइमलाइन शुरू हो जाती है ईस्वी सन पूर्व 600 से 500 तक, जहाँ पे जिसमें हमें संहिता काल मिलता है। इसमें सभी चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय संहिता, इन सभी संहिताओं का लेखन हुआ। ये सभी संहिताएं इस काल में तैयार हुई। उसका जो मैन्युस्क्रिप्ट है इसी काल में तैयार हुआ। उसमें से सिर्फ सुश्रुत संहिता में तंत्र युक्ति अध्याय, ये एक अलग अध्याय बताया गया है। और ये सभी जो ग्रंथ है वो सूत्र रूप में यहाँ पे उनकी योजना की गई है। सूत्र का अर्थ हम थोड़ा समझेंगे। मैंने आगे लिखा है, सूचनात् सूत्रणाच्चैव सवनात् च अर्थसंततेः षट्चत्वारिंशत् अध्यायम् सूत्रस्थानम प्रचक्षते। ये सूत्रस्थान की डेफिनेशन है, लेकिन यहाँ पे सूत्र शब्द का अर्थ यहाँ पे हमें समझ में आता है कि जिसमें सूचना की गई है। जो अभी आगे जाकर हम विषय बताने वाले हैं उनकी सूचना जिसमें की गई है वो सूत्रस्थान है, और जिसमें अर्थ संतत लगाया गया है वो सूत्रस्थान है। सूत्र का मतलब ऐसा है, अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतोमुखम अस्तोभम अनवद्यम च सूत्रम सूत्रविदो विदुहु। तो जो ग्रंथकार थे उन्हें ग्रंथ सूत्र रूप में ही लिखना पड़ता था, क्योंकि बहुत वास्ट नॉलेज था और वो वास्ट नॉलेज छोटे से मतलब कम मात्रा में, कम शब्दों में हमारे सामने आना चाहिए। ये उनका विषय था। उनके सामने ये एक प्रकार की समस्या थी कि ये पूरा विषय में छोटे इसमें कैसे कर पाऊं, क्योंकि अभी देखो, अभी ग्रंथ हमारे सामने आते हैं, 120 अध्याय के ग्रंथ हमारे सामने आते हैं। उसमें से सभी अध्याय सभी लोग तो पढ़ते ही नहीं है।
कोई भी सिद्धि स्थान के लास्ट के अध्याय तक जाता ही नहीं है, तंत्र युक्ति तो कोई भी पढ़ता नहीं है। तो ये इतना बड़ा वास्ट नॉलेज सूत्र रूप में कैसे किया जाए, तो उसके लिए उन्होंने तंत्र युक्ति की सहायता यहाँ पे ली है। जब ये लोग तंत्र युक्ति के द्वारा ये ग्रंथ हमारे सामने सूत्र रूप में लाते थे, और अगर उन्हें एक बड़ा सा नॉलेज या फिर एक बड़ा सा सिद्धांत जब वो सूत्र रूप में हमारे सामने लाते थे, तो उन्हें पुत्र प्राप्ति जैसा आनंद मिलता था। ऐसा भी एक श्लोक है, मुझे वो मिला नहीं, लेकिन ऐसा श्लोक है कि जब ये ग्रंथकार ये पूरा नॉलेज सूत्र रूप में लाते थे, तो उनको पुत्र प्राप्ति का आनंद मिलता था। तो इस तरीके से ये जो सभी ग्रंथ है, ये सूत्र रूप में हमारे सामने कब से आए हैं? ईस्वी सन पूर्व 600 से 500 इस काल से हमारे सामने हैं। इसके बाद टीकाकारों ने ग्रंथों में तंत्र युक्ति का विचार किया है, ये हमें समझ में आता है। सभी टीकाकारों में चक्रपाणी दत्त, गंगाधर राय, भट्टार हरिश्चंद्र, इंदु टीका, अरुण दत्त टीका, संकेत मंजिरी टीका, इन सभी टीकाकारों में तंत्र युक्ति के बारे में बहुत विचार किया हुआ दिखाई देता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ऐसा है कि बीच में हमें समझ में आता है कि कौटिल्य अर्थशास्त्र जो ईस्वी सन पूर्व 400 साल में था, और कामसूत्र जो ईस्वी सन पूर्व 300 और 100 साल 300 से 100 साल के काल में था, उसमें भी तंत्र युक्ति के बारे में विचार किया गया है। तो इसका मतलब ऐसे था, ईस्वी सन पूर्व 100 साल तक तंत्र युक्ति से ही ग्रंथ लिखना है, तंत्र युक्ति से ही ग्रंथ समझना है, ये सभी को मालूम था, और ये सामान्य जनता को भी मालूम होगा, ऐसे हमें यहाँ पे समझ में आता है। लेकिन उसके बाद इतना बड़ा कालावधि गया है, समझो 1000 साल का कालावधि गया है, जिसमें ये जो तंत्र युक्तियां है उसका लोप हो चुका होगा, और उसी के बाद ये जो टीकाकार है, इन सभी को फिर से ऐसे लगा होगा कि ये जो ग्रंथ अगर हमें समझना है, तो हमें तंत्र युक्ति का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए चक्रपाणी दत्त ने, गंगाधर राय ने, भट्टार हरिश्चंद्र ने, अरुण दत्त जी ने ये सभी तंत्र युक्तियां हमारे सामने बहुत ही विस्तार से हमारे सामने रखी है। ये हमें यहाँ पे समझ में आता है। तो ये तंत्र युक्ति का कालावधि यहाँ पे लिखा हुआ मैं आपके सामने ये दर्शाना चाहती हूँ। आगे तंत्र युक्ति के तंत्र युक्ति का उपयोग या फिर तंत्र युक्ति का प्रयोजन दो तरीके से है। ये ग्रंथकारों ने लिखा है, ये आप सभी को मालूम है। एक है वाक्य योजना और अर्थ योजना। वाक्य योजना का मतलब है वाक्य योजनम अर्थ योजनम च वाक्यस्य असंबद्धस्य योजनम संबंधनम वाक्य योजनम। तो जो कोई असंबद्ध वाक्य है जिसका अर्थ हमें समझ में नहीं आता है, असंबद्ध इसका मतलब ऐसा नहीं है कि जिसका कोई अर्थ ही नहीं है या फिर जिसका कुछ मतलब ही नहीं है, ऐसे उसका मतलब नहीं है। इसका मतलब ऐसा है कि दो वाक्य है, दो अलग अलग जगहों पर है, लेकिन उनका संबंध है। तो ये संबंध बहुत सारी तंत्र युक्तियों से लगाया जा सकता है। अतिदेश तंत्र युक्ति है, योग तंत्र युक्ति है, हेत्वर्थ तंत्र युक्ति है, जिससे हमें ये असंबंधित जो दो वाक्य है, उन दो वाक्यों का संबंध हम यहाँ पे लगा सकते हैं। और क्या है?
और दूसरा उसका प्रयोजन है अर्थयोजनम। उसका मतलब ऐसा है लीनस्य असंगतस्य च अर्थस्य प्रकाशनम। तो जो लीन अर्थ है, जो लेशों का, उन सभी शब्दों के अर्थों का प्रकाशन करना, उनका संगतिकरण करना, जो प्रकाशित हुआ है उनका संगतिकरण करना, उनको एक साथ जोड़कर एक पूरे वाक्य का अर्थ समझना, पूरे श्लोक का अन्वय समझना और पूरे संहिता का, पूरे अध्याय का अर्थ समझना और पूरे स्थान का अर्थ समझना और पूरे शास्त्र का अर्थ समझना। तो ये वाक्य योजना और अर्थ योजना, ये दोनों तंत्र युक्ति के दो प्रयोजन यहाँ पे बताए गए हैं। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि कौन कौन सी तंत्र युक्तियां वाक्य योजन करती है, कौन कौन सी तंत्र युक्तियां अर्थ योजन करती है। ये आगे भी जो व्याख्यान होने वाले हैं उसमें आप समझने वाले हो। आगे अभी हम देखने वाले हैं जो मेरे लिए अलॉट की गई जो तंत्र युक्तियां है, अधिकरण, उपदेश और विधान, ये तीनों तंत्र युक्तियां है। उसमें से सबसे पहले अधिकरण जो तंत्र युक्ति है उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो जैसे अभी मैंने यहाँ पे तंत्र युक्ति के बारे में आपको समझाया, उसी प्रकार अधिकरण के बारे में भी सबसे पहले हम उसका अर्थ समझेंगे। मैं संस्कृत की टीचर हूँ, मैं संहिता की टीचर हूँ, तो मेरा मतलब सबसे पहले मैं संस्कृत में उसका अर्थ क्या है यही आपको बताना चाहती हूँ। तो अधिकरण, अधिकरण ये शब्द कैसे तैयार हो जाता है, उसकी निरुक्ति या फिर उसका जो उसमें आए हुए जो शब्द है उसके बारे में अभी हम सबसे पहले जानेंगे। अधिकरण, अधिक क्रू, क्रू ये धातु है, उसे अधि ये उपसर्ग लगाया हुआ है और ये लुट, लुट प्रत्यय है। लुट, लुट प्रत्यय ये सभी पाणिनि के नियमों के द्वारा हो जाता है और अष्टाध्यायी में उसका मतलब बताया गया है कि भाववाचक शब्दों के लिए हमें लुट प्रत्यय लगाना चाहिए। तो क्रू से कर्ण ये शब्द तैयार हो जाता है और अधिकरण, अधिकरण, ऐसे ये अधिकरण ये शब्द पाणिनि के द्वारा या फिर अष्टाध्यायी से हमें मालूम पड़ता है। तो इसका व्याकरण जो है ये इस प्रकार हमें समझ में आता है। अभी जब अधिकरण, ये इस शब्द को अगर हमने शब्द कल्पद्रुम या फिर अष्टाध्यायी में देखा तो इससे हमें 3 अर्थ समझ में आते हैं। पहला अर्थ है आधारः अधिकरणम, सप्तमी अधिकरणे। तो सप्तमी के जो सप्तमी विभक्ति में आए हुए जो शब्द है वो अधिकरण के लिए बताए जाते हैं। जैसे एक लड़का है, वो किसी मैट पर बैठा है या फिर चटाई पर बैठा है, तो क्या होता है, ये चटाई जो है वो उसका अधिकरण है, उसके बैठने का अधिकरण है, ऐसे हमें समझ में आता है। आकाश में चंद्र और तारे हैं, तो आकाश, चंद्र और तारों का अधिकरण है। तो जो शब्द सप्तमी में आते हैं या फिर जो अधिकरण है वो सभी हमें सप्तमी में लेने पड़ते हैं। तो ये एक अर्थ अधिकरण का हो जाता है। उसके लिए उन्होंने एक श्लोक दिया है, कर्तु कर्म व्यवहिताम साक्षात धारयत क्रियाम उपकुर्वत क्रिया सिद्धौ शास्त्रे अधिकरणम स्मृतम। तो कर्ता और कर्म द्वारा, शास्त्र में कर्ता मतलब कार्य करने वाला और कर्म मतलब जिसके द्वारा कार्य किया जाता है, इन दोनों द्वारा व्यवहार करते समय, कोई भी व्यवहार करते समय
जिस पर वो क्रिया धारण होती है, जिसके द्वारा वो क्रिया की जाती है, जिसके ऊपर वो क्रिया की जाती है, उसे शास्त्र में अधिकरण कहा जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने एक हमारे ग्रंथ में से ही एक श्लोक आपके सामने रखा है। ये जो श्लोक है वो नस्य के बारे में है और चरक संहिता में से ही ये श्लोक है, जिसमें नस्य करने के बाद अगर नस्य अधिक मात्रा में हुआ तो क्या हो जाता है और कम मात्रा में हुआ तो क्या हो जाता है, उसके बारे में, मतलब नस्य का अयोग और अतियोग ये बताया गया है। पहले वाक्य में है अयोग, तो अनवाक शिरसो नस्यम न शिरहा प्रतिपद्यते। जो नस्य शीर तक पूरी तरीके से नहीं जाता है, वो शीर तक पहुंचता नहीं है। अनवाक शिरसो मतलब योग्य तरीके से अगर हमने शीर जो हमारी मन्या है उसको अगर नीचे नहीं किया, नस्य के लिए एक विशिष्ट तरीके की पोजीशन लेनी पड़ती है। तो वो अगर अनवाक पोजीशन मतलब सिर नीचे करना, ये जो पोजीशन जो है वो अगर हमने नहीं दी तो वो नस्य जो है शिर तक नहीं जाता है। और अत्यवाक शिरसो नस्यम मस्तुलुंगे अवतिष्ठति। अगर बहुत अधिक मात्रा में अगर हमने सिर नीचे झुकाया तो क्या होता है, ये नस्य मस्तुलुंग में अवतिष्ठित हो जाता है। तो यहाँ पे मस्तुलुंग का क्या है, ये अधिकरण है, ये नस्य का अधिकरण है, या फिर नस्य जो ज्यादा मात्रा में नस्य चला जाता है, नस्य में दिया हुआ जो तेल है, जो घृत है, वो मस्तुलुंग में तिष्ठित हो जाता है। तो ये मस्तुलुंग उसका अधिकरण है। तो ये हम अधिकरण से समझते हैं, ये तंत्र युक्ति नहीं है, ये सिर्फ अधिकरण की, अधिकरण क्या है ये हमें समझना है। ये क्यों समझना है, क्योंकि अधिकरण तंत्र युक्ति क्या है और अधिकरण क्या है, अधिकरण शब्द क्या है, ये हमें समझना चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, ठीक है। तो लेकिन फिर भी आधारः अधिकरणम, ये भी एक अर्थ तंत्र युक्ति का है। ये किसी कोई आचार्यों ने लिखा हुआ है, जैसे कि संकेत मंजरी में यही अर्थ दिया है कि आधारः अधिकरणम। और जो नीलमेघ नाम का जो ग्रंथ है उसमें भी आधारः अधिकरणम ऐसे ही अधिकरण इस तंत्र युक्ति का अर्थ दिया है, वो हम आगे देखने वाले। दूसरा एक अर्थ आता है जिसका मतलब है अधिकस्य अधिकरणम। तो जो अधिक मात्रा में है उसे अधिकरण कहा जाता है। जो जिसमें अधिक मात्रा में वो कोई भी चीज रखी जाती है उसे उसका अधिकरण कहा जाता है। जैसे कुंडे कमलानी मत्स्यानी च, तो कुंड में कमल होते हैं और मत्स्य होते हैं। तो अधिक मात्रा में कुंड में कमल ही होते हैं, मनुष्य नहीं होते। तो या फिर मत्स्य होते हैं, तो वहां पे कुंड ये अधिकरण है और उसके लिए सप्तमी लगाई गई है। उसी तरीके से गृहे घटाहा पटाहा, तो गृह में घट और पट होते हैं। यहाँ पे भी जो चीज अधिक मात्रा में जिसमें रहती है उसे अधिकरण कहा जाता है। तो और उसकी सप्तमी की जाती है। तो यहाँ पे कुंड और गृह उसकी सप्तमी की गई है। उसी प्रकार और कुछ श्लोक हमारे ग्रंथ में आए हैं, जैसे कि तत्र अस्तिनि स्थितो वायुः पित्तम तु स्वेद रक्तयोः श्लेष्मा शेषेषु। यहाँ सभी जो स्थान है वात पित्त और कफ के, उन सभी को यहाँ पे सप्तमी विभक्ति लगाई हुई है, ये हमें समझ में आता है। तो अधिकस्य अधिकरणम ये हमें इससे समझ में आता है। आगे का अर्थ है, तीसरा अर्थ जो अष्टाध्यायी में लिखा गया है वो है अधिकृत्य कृते ग्रंथे इति अधिकरणम। तो उसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया है, शारीरिकम अधिकृत्य कृते ग्रंथः शारीरिकीयः।
तो शारीर जिसमें शारीर का वर्णन ज्यादा मात्रा में आया है, शारीर का वर्णन जिसमें अधिकार है, जिस ग्रंथ का अधिकार शारीर है उसे शारीरिकीय ग्रंथ ऐसे कहा जाता है। तो उसी प्रकार हमारे जो अध्याय है या फिर हमारे जो स्थान है उसमें भी जिस स्थान का अधिकरण है वो विषय उस स्थान में आए हुए हैं, ये हम आगे देखने वाले हैं। और यही अर्थ तंत्र युक्ति का अधिकरण इस तंत्र युक्ति का ग्रंथ में या फिर आयुर्वेदिक ग्रंथ में लिया गया है। तो ये जो व्याख्या है, यहाँ पे निदान स्थान की व्याख्या मैंने यहाँ पे की है। निदान स्थाने, यहाँ पे भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। निदान स्थाने ज्ञात हेत्वादीना तथा विमाने प्रतीत रस दोषादि मानेन कर्तव्य चिकित्सायाः अधिकरणम शरीरम ज्ञातव्यम भवति। ये शारीर स्थान की व्याख्या यहाँ पे की गई है। तो जो शारीर स्थान से पहले जो निदान स्थान है उसमें क्या है, हेतु इत्यादि का ज्ञान है, और विमान स्थान में रस दोष इत्यादि का मान प्रमाण बताया गया है। इन सभी को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा करने के लिए वो चिकित्सा जिसके ऊपर की जाती है वो चिकित्सा का अधिकरण क्या है, शरीर। तो उस शरीर को समझना, ये जो विषय है वो शारीर स्थान का विषय बताया गया है। तो ये शारीर स्थान का अधिकरण है, ऐसे यहाँ पे हमें समझ में आता है। यह तो अप्रतिपन्ने अशेष विशेषतः शरीरे न शरीर विज्ञान अधीना चिकित्सा साध्वी भवति। अगर हमने शारीर का ज्ञान अप्रतिपन्न मतलब न जानते हुए या फिर उसका अशेष विशेषतः ज्ञान न जानते हुए, मतलब पूरी तरीके से अशेष शेष न रखते हुए या फिर विशेष ऐसे ज्ञान अगर हमने नहीं समझा तो क्या हो जाता है, जो शारीर के ऊपर जो चिकित्सा हम करते हैं वो योग्य नहीं होगी। उसका जो उपयोग है, शरीर के ऊपर जो उपयोग है वो साध्य नहीं होगा, वो साध्य नहीं होगी। इसलिए हमें अतः शरीरम कारण उत्पत्ति स्थिति वृद्ध्यादि विशेषैः प्रतिपादयितुं शारीर स्थानम उच्यते। तो इसलिए शरीर का कारण क्या है वो हमें समझना है, शरीर की उत्पत्ति कैसे होती है वो समझनी है, उसकी स्थिति क्या है और उसके वृद्ध्यादि विशेष क्या है वो जानने के लिए शरीर स्थान का वर्णन किया गया है। ये शारीर स्थान का प्रतिपाद्य विषय है, ये शारीर स्थान का वर्ण्य विषय है। तो इसलिए शारीर स्थान ये इसका अधिकरण क्या है वो यहाँ पे हमें समझ में आता है। तो इस तरीके से जो अष्टाध्यायी है या फिर अधिकरण, इस शब्द का अर्थ हमने यहां से जाना है। फिर आगे तो हम आगे देखेंगे कि जो तो इस तरीके से हमने यहाँ पे जो अधिकरण इस शब्द का जो पाणिनीय अर्थ है या फिर जो गर्भित अर्थ है या फिर जो शब्दशः अर्थ है वो हमने यहाँ पे जाना है। अभी अधिकरण इस शब्द का या फिर अधिकरण इस तंत्र युक्ति का मतलब क्या है वो हम आगे देखने वाले हैं। अधिकरणम नाम, अधिकरण ये सबसे पहली तंत्र युक्ति, सभी ग्रंथों में ये ही तंत्र युक्ति सबसे पहले बताई गई है। तो अधिकरणम नाम यम अर्थम अधिकृत्यम प्रवर्तते कर्ता, मतलब ग्रंथकर्ता। तो ग्रंथकर्ता अधिकरण
जिस अर्थ से, जिस वर्ण्य विषय से, जिस अर्थ से यम अर्थम अधिकृत्यम प्रवर्तते, ग्रंथ तैयार करने के लिए या फिर ग्रंथ की रचना करने के लिए प्रवर्तित हो जाता है, उसे अधिकरण कहा जाता है। उसी प्रकार व्याख्या सुश्रुताचार्य ने भी दी है। तत्र ये व्याख्या तंत्रयुक्ति अध्याय में दी गई है। तत्र यम अर्थम अधिकृत्य उच्यते अधिकरणम, या फिर अरुण दत्त जी ने भी दी है। वो व्याख्या बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वो व्याख्या हम यहाँ पे देखेंगे। अष्टांग हृदय में उत्तर स्थान में वाजीकरण अध्याय में ये व्याख्या की गई है और श्लोक नंबर है अष्टांग हृदय उत्तर स्थान अध्याय 40 श्लोक नंबर 80 श्लोक नंबर में इस सभी तंत्र युक्तियों की व्याख्या, लेकिन वो भी सर्वांग सुंदरी जो व्याख्या है अरुण दत्त जी ने जो टीका लिखी है उसमें की गई है, और वो व्याख्या बहुत ही महत्वपूर्ण है। अधिकरणम नाम यद अधिकृत्य प्रवर्तते शास्त्रम स्थानम अध्यायः प्रकरणम वाक्यम वा। तो इसका मतलब है शास्त्र जिस वर्ण्य विषय को अधिकृत करता है, स्थान जिस वर्ण्य विषय को अधिकृत करता है, अध्याय जिस वर्ण्य विषय को अधिकृत करता है, प्रकरण जिस वर्ण्य विषय को अधिकृत करता है, और वाक्य जिस वर्ण्य विषय को अधिकृत करता है, उसे अधिकरण उसे शास्त्राधिकरण, स्थानाधिकरण, अध्यायाधिकरण, प्रकरण अधिकरण और वाक्याधिकरण ऐसे कहा जाता है। तो ये सभी जो है वो हमें समझना है। उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा व्यावहारिक उदाहरण आपको बताने जा रही हूँ। यह अधिकरण समझ में आया कि ग्रंथ का जो वर्ण्य विषय है उसे अधिकरण कहा जाता है। इसका मतलब क्या है, क्यों ये वर्ण्य विषय ही क्यों समझना है? तो उसके लिए मैं आपको एक व्यावहारिक उदाहरण देना चाहती हूँ। अगर एक 10-15 लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने ऐसे कहा कि हमें एक सभा लेना है, एक मीटिंग करनी है, और उस मीटिंग का कुछ एजेंडा ही नहीं रखा, तो क्या होगा? तो ऐसे होगा कि कुछ लोग समय पर पहुंचेंगे ही नहीं वहां पे। अगर आजकल तो क्या होता है, जो इन्फोसिस जैसी कंपनियां हैं या फिर बड़ी बड़ी जो कॉरपोरेट कंपनियां हैं, उसमें तो ये एजेंडा पहले ही लिखा जाता है और वो मेल में वो दिया जाता है। अगर वो दिया ही नहीं तो क्या होता है, तो लोग आते ही नहीं मीटिंग पर, या फिर अगर आएंगे तो विषय की तैयारी न करते हुए आएंगे, या फिर क्या होगा, जो लोग हमें चाहिए वो मीटिंग में वो नहीं आएंगे, दूसरे कोई और ही आ जाएंगे। या और क्या होगा, लोगों को सभा का जो मतलब है वो उनको समझ में नहीं आएगा और उसके कारण संभ्रम पैदा हो सकता है। या फिर जो सभा में जो बातचीत होगी वो गलत मार्ग धारण करेगी, या फिर जिनको इस सभा के बाद अगर कुछ काम करना है तो वो योग्य तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, या फिर कुछ लोग सभा छोड़कर ही जल्दी निकल जाएंगे। सभा एक तो जल्दी खत्म हो जाएगी या फिर देर तक चलती रहेगी। अगर उसका मतलब जब तक समझ में नहीं आता है तब तक ये सभा चलती रहेगी। तो ये सभी जो है, ये सभी दिक्कतें जो है वो अगर सभा का एजेंडा, सभा का विषय जो सभा में आने वाले लोग हैं उनके सामने अगर नहीं रखा तो ये सब दिक्कतें आ सकती है। तो इसलिए सभा का एजेंडा हमें मालूम होना चाहिए। तो इसी प्रकार अगर हम कोई पुस्तक पढ़ते हैं, दूसरा एक उदाहरण है कि अगर कोई पुस्तक पढ़ते हैं, मैं जब बाहर थी, अब्रॉड मतलब ऑस्ट्रेलिया में थी, तो वहां पे
बहुत बड़ी-बड़ी लाइब्रेरियाँ थी और उस लाइब्रेरी में बहुत सारे विषयों की पुस्तकें वहाँ पे दिखाई देती थी। तो मुझे पहले तो मुझे समझ में ही नहीं, बहुत बड़ी-बड़ी थी, 3-4 2-3 ऐसे उसमें स्टेयर्स थे और उसके ऊपर मतलब 2-3 अ अ 2-3 स्टेयरकेस चढ़ के ऊपर जाके फिर वो मुझे जो कुछ विषय मुझे चाहिए वो मुझे मिलता था। तो अगर मुझे विषय पता नहीं है कि मुझे क्या पढ़ना है, तो क्या होगा? मैं घूमती रहूँगी और फिर मुझे समझ में आएगा कि मैं अभी कौन-सा विषय तो मुझे वहाँ पे जाके मुझे समझना पड़ेगा कि मुझे कौन-सा विषय चाहिए। मुझे तय करना पड़ेगा कि कौन-सा विषय चाहिए। इसमें क्या होगा, जो समय है वो व्यतीत हो जाएगा, वो ज़्यादा समय मेरा चला जाएगा। इससे अच्छा है अगर मैं पहले से ही मेरा विषय, मुझे जो कुछ विषय चाहिए वो अगर मैं पहले से तय कर लेती हूँ और वहाँ पे जाती हूँ, वहाँ पे भी मैंने अगर उनको बताया कि मुझे इस विषय में कुछ ग्रंथ चाहिए या फिर कुछ बुक चाहिए, तो वो अपने आप वो विषय वो मुझे कह देंगे कि यहाँ पे इस स्थान पे जाओ और वहाँ से आप आपका जो पुस्तक चाहिए, आपको जो बुक चाहिए वो आप ले लो। लेकिन अगर मैंने वो तय ही नहीं किया तो क्या हो जाएगा, मेरा समय चला जाएगा, मुझे ज़्यादा समय लगेगा और संभ्रम निर्माण हो जाएगा। तो उसी प्रकार अभी ये आयुपीडिया का ही हम उदाहरण ले लेंगे। अगर इन लोगों ने एक विषय की तैयारी की, उनके मन में एक विषय आया कि हम तंत्र युक्ति का अध्ययन करेंगे, तो इसलिए उन्होंने उसकी दिशा में चलना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने 10-12 लोग इकट्ठा किए जो तंत्र युक्ति पर व्याख्यान दे सकते हैं और फिर उसके बाद ये व्याख्यान माला की शुरुआत हो गई। तो सबसे पहले क्या होता है, हमें कुछ विषय समझ में आना चाहिए। मुझे क्या करना है, मुझे कौन सा विषय पसंद है और मैं किसमें काम करना चाहती हूँ, ये सबसे पहले खुद की तैयारी होनी चाहिए। फिर उसके बाद मैं उस विषय में जो ग्रंथ है उसे ढूंढना शुरू कर देती हूँ। तो इसलिए मैं क्या ढूंढती हूँ कि कौन-कौन से ग्रंथ ऐसे हैं कि जो वो मेरे विषय को उद्धृत करते हैं, या फिर कौन-कौन से ग्रंथ हैं जिसमें मेरा विषय जो है वो अधिक मात्रा में है। तो अगर मुझे आयुर्वेद पढ़ना है तो मैं क्या करती हूँ, मैं चरक संहिता देखती हूँ क्योंकि वो उस ग्रंथ का अधिकरण है। अगर मुझे उसी में अष्टांग के बारे में जानना है तो मैं क्या देखने वाली हूँ, मैं अष्टांग हृदय को देखने वाली हूँ जिसमें 8 अंगों का वर्णन किया गया है। चरक संहिता में भी है, लेकिन चरक संहिता में विस्तृत स्वरूप से आया है, इसमें भी आया है, लेकिन अष्टांग ये नाम सुनते ही मुझे समझ में आता है कि इसमें 8 अंगों का वर्णन किया गया है। अगर शल्य के बारे में जानना है तो मैं सुश्रुत संहिता को देखने वाली हूँ। तो इसी प्रकार जो ग्रंथ का, जो शास्त्र का जो विषय है उसमें उद्धृत होना चाहिए और यही अधिकरण, शास्त्राधिकरण कहा जाता है। तो मैंने अभी जैसे कहा कि अगर आयुर्वेद ये एक विषय भी हम लेंगे तो विविधानि शास्त्राणि प्रचरन्ति लोके, बहुत सारे शास्त्र आयुर्वेद को बताने वाले हमें समझ में आते हैं। जैसे चरकादि संहिता ये बृहत्त्रयी तो है ही, फिर लघुत्रयी है, फिर अलग अलग प्रकार के निघंटु है, फिर और कुछ रसशास्त्र के ग्रंथ है। तो उसमें से मुझे अभिप्रेत विषय कौन सा है ये मुझे पहले समझना चाहिए और फिर उसके बाद मैं उस ग्रंथ को
सिलेक्ट करूंगी और उसको उसका आधार लेके मैं उस पर काम करना शुरू कर दूंगी। तो ये शास्त्र का अधिकरण है। जैसे अगर मुझे आयुर्वेद नहीं, मुझे आत्मा को जानना है, मुझे ब्रह्म को जानना है, तो मैं क्या देखूंगी? मैं वेदांत ग्रंथ देखूंगी, वेदांत के ग्रंथ देखूंगी, जिसमें वेदांत का वर्णन या फिर आत्मा का वर्णन बहुत अधिक मात्रा में आया है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि वेदांत शास्त्र का जो अधिकरण है वो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म का ज्ञान होना, ये वेदांत का अधिकरण है। वैशेषिक ग्रंथों का अगर मुझे धर्म जानना है या फिर जो प्रमाण प्रमेय जानना है तो क्या करना होगा? मुझे वैशेषिक ग्रंथों का, वैशेषिकों के ग्रंथों का आधार लेना पड़ेगा। अगर मुझे योग शास्त्र का ज्ञान करना है तो मुझे योग शास्त्र का आधार लेना पड़ेगा। अगर मुझे मीमांसा का ज्ञान करना है जिसमें विषय, संशय, पूर्व पक्ष, उत्तर, पूर्व पक्ष का उत्तर और उसका निर्णय, फिर उसके बाद उसका सिद्धांत, मतलब मुझे सिद्धांत को जानना है तो मुझे मीमांसा शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। तो ये सभी जो है ये शास्त्राधिकरण कहे जाते हैं, जिसमें शास्त्र का अधिकरण या फिर शास्त्र का वर्णन किया जाता है। और शास्त्र के ये सभी उस शास्त्र के विषय हमारे सामने आते हैं। उसी प्रकार अभी मैंने आयुर्वेद शास्त्र के बारे में आपसे बातचीत की। जैसे काश्यप संहिता है, अगर बाल रोग, स्त्री रोग को जानना है तो मैं काश्यप संहिता पढ़ूंगी। शल्य तंत्र को जानना है तो सुश्रुत का ज्ञान ले लूंगी। तो इस प्रकार अलग अलग ग्रंथ जो है वो अलग अलग विषयों को उद्धृत करते हैं और वही उनका अधिकरण कहा जाता है। तो ये है शास्त्र का अधिकरण, यत् अधिकृत्यम शास्त्रम प्रवर्तते। अगर अर्थशास्त्र को जानना है तो मुझे अर्थशास्त्र का जो कौटिल्य ग्रंथ है उसे जानना पड़ेगा, उसके बारे में मुझे उसका आधार लेना पड़ेगा। तो मैंने अभी शब्द क्या इसमें यूज किया? आधार लेना पड़ेगा। तो नीलमेघाचार्य और संकेत मंजिरी, उसमें अधिकरण शब्द का अर्थ ही ऐसे दिया है, आधारो अधिकरणम। तो मुझे जो अभिप्रेत विषय है वो जिस शास्त्र में है उस शास्त्र का मैं आधार लेने वाली हूं, तो इसलिए अधिकरण का मतलब है आधारो, एक मतलब है आधार। तो आधारो अधिकरण, ये भी एक अधिकरण का मतलब यहाँ पे हमें समझ में आता है। आगे है जो पाणिनि में भी दिया हुआ है, जो हमने देखा। आगे है स्थानाधिकरणम। तो स्थान का मतलब हम सभी जानते हैं। तो हर एक संहिता में स्थान आए हुए हैं। जैसे सूत्र स्थान है, शारीर स्थान है। अगर सुश्रुत का किसी भी संहिता का कोई भी स्थान आप निकालो, उसमें जो पहला श्लोक होता है उससे हमें उसका वर्ण विषय समझ में आता है। अगर वो वर्ण विषय हमें जो ग्रंथकार है उन्होंने लिखे हुए श्लोक से समझ में नहीं आया तो टीकाकार उसका मतलब हमें यहाँ पे देते हैं। जैसे शारीर स्थान है, ये हमने अभी देखा, हम दूसरा स्थान देखेंगे। समझो निदान स्थान है, तो निदान स्थान में जो पहला वातव्याधि निदान है, तो यहाँ पे हमें समझ में आता है वातव्याधि के बारे में बताया जाने वाला है और निदान, उसका निदान बताया जाने वाला है। तो निदान का मतलब टीकाकार ने दिया हुआ है। निदान में क्या क्या आता है उसका मतलब टीकाकार यहाँ पे देते हैं। निदान स्थान में क्या क्या आता है? तो हेतु लिंग औषध ज्ञान बीज भूतेन सूत्र स्थानेन संक्षेप उद्दिष्ट। सूत्र स्थान में हेतु लिंग औषध का संक्षेप में वर्णन आया हुआ है और उसी का विवरण अभी यहाँ पे निदान स्थान में किया जाने वाला है, उसे हम निदान स्थान कहते हैं। और शल्य तंत्र के लिए वातव्याधि ये महत्वपूर्ण अध्याय है, इसलिए वातव्याधि से यहाँ पे शुरुआत की जा रही है। तो हर एक स्थान में, चरक संहिता में,
सुश्रुत संहिता में, अष्टांग हृदय संहिता में, सभी संहिता में सबसे पहले स्थान का महत्व हर एक अध्याय के पहले श्लोक में दिया गया है और उससे हमें पूरे स्थान में क्या क्या हमें बताया जाने वाला है उसका वर्णन यहाँ पे आता है। तो निदान स्थान में हेतु लक्षण प्रतिपादकतया निदान स्थानम प्रारंभः। तो हेतु जो व्याधि के जो हेतु है, जो लक्षण है, उसको प्रतिपादन करना, उसको बताना, ये निदान स्थान का वर्ण्य विषय है, ये हमें यहाँ पे समझ में आता है। तो उसी प्रकार विमान स्थान, इंद्रिय स्थान, इस प्रकार सभी स्थानों का वर्णन उस अध्याय के पहले श्लोक में किया गया है। उसी प्रकार अध्याय अधिकरण, अध्यायों का जो कुछ वर्णन है या फिर अध्यायों का जो वर्ण्य विषय है वो बताया गया है। अभी यहाँ पे अध्याय आगे जो कुछ अध्याय अधिकरण या फिर प्रकरण अधिकरण या फिर वाक्याधिकरण, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। अधिकरण तंत्र युक्ति के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। तो अध्याय अधिकरण अगर हम देखेंगे तो उसमें जो जो अध्याय आए हैं वो उनके जो अध्यायों के नाम है उससे हमें बहुत बार समझ में आता है कि ये अध्याय किस विषय को उद्धृत करते हैं। तो दीर्घन जीवितीय इस अध्याय से हमें समझ में आता है कि दीर्घ जीवित इस विषय में मतलब हमारा आयुष्य दीर्घ होने के लिए कौन कौन से विषय है, उन सभी विषयों का वर्णन दीर्घन जीवितीय अध्याय में आता है। उसी प्रकार अपामार्ग तंडुलीय, आर्गवद्य, इन सभी अध्यायों से हमें समझ में आता है कि कौन कौन से विषय उसमें आए हैं। लेकिन चरक संहिता में इन अध्यायों के नामों का या फिर कोई भी संहिता में इन अध्यायों को नाम देने की जो कुछ पद्धति है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये नाम दो तरीके से दिए जाते हैं। एक, कुछ नाम जो है जैसे स्नेहाध्याय है, स्वेदाध्याय है या फिर स्रोतो विमान ये अध्याय है, अष्टांग हृदय में दिनचर्या अध्याय है, ऋतुचर्या अध्याय है। इन सभी अध्यायों में जो विषय वर्णित है उसका नाम उस अध्याय को दिया गया है। जैसे स्नेहाध्याय में सभी स्नेह के बारे में बताया गया है, अभ्यंतर स्नेह, बाह्य स्नेह, स्नेह का कालावधि, स्नेह के अधिक स्नेह से क्या होता है, कम स्नेह से, कम मात्रा में स्नेह लेने से क्या होता है। उसी प्रकार स्वेदाध्याय में स्वेद के बारे में, अलग अलग स्वेदों के बारे में वर्णन है, अति स्वेद से क्या होता है, कम स्वेद से क्या होता है, इन सभी का वर्णन किया गया है। दिनचर्या अध्याय में सभी पूरे दिन में हमें क्या क्या करना चाहिए, रात्रचर्या कैसे होती है, इस सभी का वर्णन दिनचर्या अध्याय में आता है। ऋतुचर्या में षड ऋतुओं का वर्णन है और उसके बारे में और उससे कौन से दोष बढ़ते हैं, इन सभी का वर्णन, मतलब कौन कौन से ऋतु में कौन से दोष बढ़ते हैं, इन सभी का वर्णन उस अध्याय में किया गया है। तो ये अध्याय कैसे है, एक विषय, एक प्रकरण और उसके लिए एक अध्याय, ऐसे वर्णन किया गया है। महारोगाध्याय, उसमें क्या है, अलग अलग प्रकार के रोगों का वर्णन है, कौन से एक है और उन रोगों के बारे में उनकी विधि भेद उनके बताए गए हैं। खुड्डाग चतुष्पाद में चतुष्पाद का वर्णन किया गया है। तो ये जो अध्याय है उनके नाम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, स्नेहाध्याय, स्वेदाध्याय, स्रोतों का अध्याय, महारोगाध्याय। इस प्रकार उन अध्यायों के नामों के वर्णन से हमें उस अध्याय में क्या है वो समझ में आता है। लेकिन कुछ अध्याय ऐसे हैं जिसमें जैसे दो अध्याय है, एक है
शारीर स्थान में एक अध्याय है कतिधा पुरुषीय अध्याय। तो ये जो अध्याय है, या फिर सूत्र स्थान में एक अध्याय है कियंतः शिरसीय अध्याय। तो ये दो जो अध्याय है उसमें जो अध्यायों के जो नाम हैं वो अध्यायों के पहले सूत्र से लिए गए हुए हैं। तो ये अध्याय के नाम के लिखने की एक अलग पद्धति है। इसमें शुरुआत ही कतिधा पुरुष, एक दिखा देती हूं आपको, कतिधा पुरुषो धीमान। तो यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया है, अग्निवेश ने आत्रेय जी को प्रश्न पूछे हैं। उसमें पहला प्रश्न है कतिधा पुरुषो धीमान। तो उससे जो पहले जो 2-3 शब्द है उससे ये अध्याय के नाम का वर्णन किया गया है, कतिधा पुरुषीय अध्याय। ये एक पद्धति है। उसमें भी इस नाम को ईय ऐसे प्रत्यय लगाया है। ईय ये छ प्रत्यय है। अध्यायो अनुवाकयो लुक, ऐसे पाणिनि का एक सूत्र है जिससे अध्याय का जो नामकरण है उसमें कुछ लोप हो जाता है, ऐसे उसका वर्णन किया गया है। तो उसमें इसका अर्थ ऐसा है कि इसमें जो वर्णन किया गया है वो उस विषय से निगडित है। जैसे अतुल्य गोत्रीय शारीरम, तो उसमें जो कुछ वर्णन है वो अतुल्य गोत्र से संबंधित है। सूत्र स्थान में कुछ अध्याय है, जैसे पहला ही अध्याय है दीर्घन जीवितीय अध्याय। इसमें अगर हमने देखा तो कुछ प्रकरण जो है, जो पहले उन्होंने आयुर्वेदावतरण का वर्णन किया है, फिर कुछ द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, ये इन विषयों का वर्णन किया है। फिर कुछ जो श्लोक है वो दीर्घ जीवित के लिए कुछ वनस्पतियों का वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार इस अध्याय में अलग अलग प्रकरण दिए गए हैं और उनका वर्णन किस लिए किया गया है, दीर्घ जीवन के लिए किया गया है। तो इन सभी से हमें दीर्घ जीवन किस किस चीज से प्राप्त हो जाता है, इन सभी का वर्णन दीर्घ जीवितीय अध्याय में हमें मिलता है। तो इसलिए ये एक अलग पद्धति यहाँ पे हमें समझ में आती है। जैसे और एक अध्याय है जैसे जाति सूत्रीय अध्याय। तो शारीर स्थान का जो जाति सूत्रीय अध्याय है उसमें जाति मतलब जन्म के कारण का वर्णन किया है। गर्भोत्पत्ति से लेकर प्रसूति तक सभी का वर्णन उसमें आता है। फिर गर्भोपघातकर भाव, उनका वर्णन उसमें आता है। फिर कुमार जन्म जात कर्म, उसका वर्णन आता है। रक्षा विधि का वर्णन आता है। फिर सूति का परिचर्या, स्तन्य का प्रकरण आता है। फिर धात्री परीक्षा, कुमार क्रीड़ानक, इन सभी का वर्णन आता है। लेकिन नाम क्या है, जाति सूत्रीय अध्याय। तो यहाँ पे जन्म के बारे में, गर्भ के जन्म के बारे में, या फिर मनुष्य के जन्म के बारे में जो चीजें है, जो संबंधित विषय है, जो संबंधित प्रकरण है, उनका वर्णन इस जाति सूत्रीय अध्याय में किया गया हुआ हमें समझ में आता है। तो इस तरीके से ग्रंथ के अध्याय के नामों की लिखने की जो पद्धति है वो अलग अलग यहाँ पे हमें समझ में आती है। तो ये है अध्याय अधिकरण। तो यम अर्थम अध्यायम यम अर्थम अधिकृत्यम अध्यायम प्रवर्तते इति अध्यायाधिकरणम। तो जिस अर्थ को लेकर, जिस वर्ण्य विषय को लेकर अध्याय प्रवर्तित होता है, अध्याय तैयार किया जाता है, अध्याय समझता है, उसे हम अध्याय अधिकरण कह सकते हैं। तो ये है अध्याय अधिकरण। उसी प्रकार प्रकरण अधिकरण होता है। जैसे अभी मैंने बताया कि दीर्घ जीवितीय अध्याय अगर हमने देखा तो उसमें दीर्घ जीवित के बारे में सभी अलग अलग प्रकरणों का वर्णन है। सबसे पहले वर्णन है आयुर्वेद अवतरण, उसका वर्णन किया गया है। फिर उसके बाद जो षड
विषय है षड, जो द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, उससे निगडित जो विधियां तैयार हो जाती है उनका वर्णन किया गया है, और उसके बारे में सविस्तर वर्णन आगे वो करते जाते हैं। तो इस प्रकार बाद में हेतु संग्रह का वर्णन है और दोषों का वर्णन करते हुए वो अध्याय पूरा हो जाता है। अष्टौ निंदितीय, ये अगर हमने अध्याय देखा सूत्र स्थान में, तो उसमें भी स्थौल्य कार्श्य उसके बारे में वर्णन किया गया है। फिर उसके बाद कुछ अलग प्रकरण आया है जो निद्रा के बारे में वहां पे वर्णन किया गया है। तो ये थोड़ा अलग प्रकरण है। निद्रा जो है वो कृशता और स्थूलता बढ़ाने या फिर कम करने के लिए वो एक प्रकार का कारण है। तो इसलिए उसका वर्णन उस अध्याय में 35 श्लोक से लेकर आगे किया गया है। लेकिन उससे पहले वाला जो प्रकरण है उसमें स्थौल्य और कार्श्य उसके बारे में बताया गया है। तो स्थौल्य का एक प्रकरण है, कार्श्य का एक प्रकरण है, और फिर उसके बाद निद्रा का प्रकरण वहां पे किया गया है। इंद्रियोपक्रमणीय अध्याय है, जिसमें इंद्रियों के बारे में, इंद्रियों के जो स्थान है, उन इंद्रियों के जो विषय है उसके बारे में पूरा वर्णन किया गया है, और फिर उसके बाद मन के बारे में वर्णन किया जाता है। तो इस प्रकार अलग अलग प्रकरण अलग अलग अध्यायों में दिए गए हैं। तो ये समझना, ये प्रकरण अधिकरण है। तो कौन से प्रकरण में वो श्लोक आया है वो हमें समझना चाहिए। अगर हमने कोई भी एक श्लोक लिया तो वो श्लोक कौन से प्रकरण में आया है उसे हमें समझना चाहिए। उसी प्रकार आगे जो है, जो लास्ट वाला है, उसे वाक्य अधिकरण कहा जाता है, उसे ही श्लोकाधिकरण कहा जाता है। तो उसमें हम कुछ श्लोक देखेंगे। वो बहुत, ये जो वाक्य अधिकरण है वो महत्वपूर्ण है। प्रकरण अधिकरण हमें पूरा प्रकरण, मतलब पूरा जो उसमें आए हुए सभी श्लोकों को हमें देखना पड़ता है, तभी हमें वो श्लोक समझ में आते हैं। वाक्य अधिकरण में कोई भी एक श्लोक को लेकर उस श्लोक का अधिकरण क्या है, हर एक श्लोक के लिए अलग अलग अधिकरण हो सकता है, उसे वाक्य अधिकरण कहा जाता है। सबसे पहला हम श्लोक देखेंगे चरक सूत्र स्थान 18वें अध्याय में, त्रिशोथी अध्याय में एक श्लोक दिया है 46 नंबर का। क्या लिखा है इसमें? तस्माद् विकार प्रकृति ही अधिष्ठानांतराणि च समुत्थान विशेषाश्च बुद्ध्वा कर्म समाचरेत्। इसका मतलब ऐसा है, विकार प्रकृति इसका मतलब है दोष। जो कोई रोग होता है उसमें उस विकार की प्रकृति क्या है, उसके दोष कौन से हैं, उसमें जो विकृत होने वाले जो दोष है वो कौन से है, ये जो दोष है उनका अधिष्ठान क्या है, अधिष्ठानांतराणि च, समुत्थान क्या है, उसका हेतु क्या है, मतलब उस रोग होने के लिए आहार विहार क्या है, ये सभी समझना। और ये समझते हुए बुद्ध्वा, बुध शब्द है जानना, पूरे जानते हुए चिकित्सा करना, इसे त्रिविध बोध्य संग्रह कहा जाता है। इससे हमें चिकित्सा कैसे करनी है वो समझ में आता है, इसलिए इसको कहा गया है त्रिविध बोध्य संग्रह। तो ये जो है ये वाक्य का अधिकरण है। वाक्य मतलब श्लोक। तो ये जो दो लाइंस है जो यहाँ पे आई है, उसका मतलब हमें समझते हुए हमें इस श्लोक का अर्थ समझना है, और इस श्लोक का अर्थ हमें सभी जगहों पर लगाना है। ये वाक्य का अधिकरण है। इस वाक्य का अधिकरण समझते हुए हमें फिर कर्म करना है, और इस अधिकरण को समझते हुए
हमें ये जो वाक्याधिकरण है ये हमें पूरे ग्रंथ को लगाना है। ये अगर हमने समझा तो हम पूरे ग्रंथ में जो चिकित्सा है वो हम कर सकते हैं। पूरे ग्रंथ में जहां जहां पे दोषों के बारे में लिखा है, दूष्यों के बारे में लिखा है और उनके हेतुओं के बारे में लिखा है, व्याधि के हेतुओं के बारे में लिखा है, वो जानते हुए हम कर्म कर सकते हैं। तो हमें पूरे ग्रंथ में जहां जहां पे दोष है, दोषों के बारे में, दूष्यों के बारे में या फिर उनके हेतुओं के बारे में, व्याधि के हेतुओं के बारे में जो जो वर्णन है वो हमें समझना है और हमें कर्म करना है। तो ये है त्रिविध बोध्य संग्रह। इसका अर्थ जो इस श्लोक का जो श्लोक के बारे में जो वर्णन है वो इसकी फलश्रुति में, ग्रंथ जो अध्याय की फलश्रुति में दिया हुआ है कि इस 3 चीजों को त्रिविध बोध्य संग्रह कहा जाता है, जिससे हमें व्याधि समझ में आता है और उससे हमें चिकित्सा क्या करनी चाहिए वो समझ में आता है, इसलिए इसे त्रिविध बोध्य संग्रह कहा जाता है। दूसरा एक श्लोक है चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 17। ये श्वास, हिक्का श्वास का अध्याय है। इसमें 17 नंबर का है, 121 नंबर का श्लोक है। ये श्लोक कास की अवस्था को हिक्का और श्वास की अलग अलग अवस्थाओं को बताने वाला श्लोक यहाँ पे दिया गया है। क्या लिखा है यहाँ पे? कासिने छर्दनम दद्यात् स्वरभंगे च बुद्धिमान वातश्लेष्म हरैः युक्तम तम केतु विरेचनम। अभी ये श्वास कास का अध्याय है, तो हम क्या समझते हैं? पहले दो जो वाक्य है वो हमें समझ में आते हैं कि कासिने छर्दनम दद्यात्। क्या करना है? कास अगर अवस्था है तो जिसको कास हो रहा है उसे क्या देना है? छर्दनम दद्यात्। किससे देना है? वातश्लेष्म हरैः युक्तम। वातश्लेष्म हर औषधियों के साथ हमें छर्दन देना है, वमन देना है, ये हमें यहाँ पे समझ में आता है। स्वरभंगे च बुद्धिमान, स्वरभंग में भी क्या करना है? वातश्लेष्म हर युक्त औषधों से हमें वमन देना है। ये हमें पहले 2 वाक्य तो यहाँ पे समझ में आते हैं, लेकिन आगे क्या लिखा है? तम केतु विरेचनम। तो हम क्या समझते हैं यहाँ पे? हम समझते, बहुत सारे लोग अगर हमने इसका वाक्याधिकरण नहीं समझा तो ऐसे समझ में आता है कि तमक श्वास में विरेचन देना चाहिए, लेकिन ये गलत अर्थ है। तमक श्वास में विरेचन नहीं देते हैं, तमक श्वास में छर्दन ही देते हैं, ये पहले ही बताया गया है। लेकिन यहाँ पे क्या बताया है? तमक हेतु विरेचनम। तो तमक इस शब्द का अर्थ है भ्रम होना या फिर ग्लानि आना, ये अर्थ इसमें हमें समझना चाहिए। तमक मतलब अंधकार, ये अर्थ हमें यहाँ पे समझना चाहिए। तो तमकेतु विरेचनम, यहाँ पे तमक, इसमें हमें पित्तानुबंध है, ये हमें समझना चाहिए। और ये हम कैसे समझेंगे? ये जो वाक्याधिकरण है इसके लिए हमें कुछ है, इसके लिए ये यहाँ पे जो अर्थ है वो हम इसके लिए अलग रेफरेंस बताया गया है 18वें अध्याय में। तो 18वें अध्याय से हमें समझ में आता है कि यहाँ पे तमक, इसका मतलब हमें लेना है कि पित्तानुबंधज कास, ये हमें यहाँ पे पित्तानुबंधज श्वास और हिक्का, ये हमें अर्थ यहाँ पे लेना है। ये हमें 18वें अध्याय से समझ में आता है। 18वें अध्याय में 131वां श्लोक है। इसमें क्या लिखा है? तमकः कफ कासेतु स्याच्चेत पित्तानुबंधजाः। तो
तमक में है कफज कास में अगर पित्त का अनुबंध होगा तो तमक होगा। यहाँ पे अन्वय लगाया जाता है, कफज कासे पित्तानुबंधजाः तमकाः स्यात्। अगर कफज कास में पित्त का अनुबंध हो जाता है तो तमक हो जाता है, तमक ये अवस्था प्राप्त हो जाती है। मतलब ग्लानि हो सकती है या फिर भ्रम निर्मिति हो सकती है। तो उसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखा है वाते कफानुबंधेतु कफ हरिम क्रियाम। तो अगर कफानुबंध है कास में तो है वातज कास में अगर कफानुबंध है तो कफहर क्रिया करनी चाहिए। लेकिन वात कफयोः पित्त अनुबंधयोः पित्तनाशिनी क्रियाम, यहाँ पे हमें पित्तनाशक क्रिया करनी चाहिए। और वो भी कैसे करनी चाहिए, कासे अन्नपानम कफजे सपित्ते तिक्त संयुतम। तो अगर पित्त का अनुबंध है श्वास में, कास में, हिक्का में, तो हमें तिक्त संयुक्त अन्नपान लेना है और पित्त नाशन ये क्रिया हमें करनी चाहिए, क्योंकि उसमें तमक ये अवस्था हो सकती है। तो ये हमें पुष्टि देने वाला ये यहाँ पे श्लोक हमें समझ में आता है। तो ये वाक्य का अधिकरण है। तो उस वाक्य से हमें वहां पे तमक इसका मतलब तमक श्वास न लेते हुए तमक इसका मतलब भ्रम या फिर पित्त का अनुबंध है, इसके लिए भ्रम या फिर ग्लानि होना, यह अवस्था हमें वहां पे समझनी चाहिए। तो ये है वाक्याधिकरण। अभी एक आखिरी श्लोक हम देखते हैं और फिर रुकते हैं। चरक सूत्रस्थान अध्याय 26। आत्रेय भद्रकाप्पीय अध्याय है, उसमें 37 नंबर का श्लोक है। इसमें ये जो अध्याय है आत्रेय भद्रकाप्पीय अध्याय, ये अध्याय द्रव्य गुण कर्म मतलब अलग अलग द्रव्य, रस, वीर्य, विपाक और द्रव्य गुण कर्म ये बताने वाला ये अध्याय है। ये बताने के बाद, इससे पहले मतलब जो श्लोक है उससे पहले वाला जो श्लोक है, ये गुण का वर्णन करने वाला श्लोक यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे परादि गुण ये बताए गए हैं। फिर उसके बाद गुण गुणाश्रया न उक्ता तस्माद रसगुणान्भिष विद्या द्रव्य गुणान कर्तुः अभिप्रायाः पृथक विदाः। तो यहाँ पे द्रव्य गुण कर्म के बारे में बताया गया है। और गुण ये गुणाश्रित न होते हुए द्रव्य का आश्रय लेते हैं, ये ग्रंथकर्ता का अभिप्राय है, ये यहाँ पे वो बताना चाहते हैं। तो ये अभिप्राय हमें कैसे समझना चाहिए, तो उसके बारे में उन्होंने ये आगे वाला श्लोक दिया गया है। यहाँ पे वर्णन आया है कि जो गुण है, द्रव्य के जो गुण है, रुक्ष, शीत, लघु, खर, ये जो गुण है, ये गुणों के आश्रित न रहते हुए वो द्रव्य के आश्रित हमें मानने चाहिए। या फिर वो रसाश्रित भी नहीं है, क्योंकि हम बोलते हैं कि मधुर रस का जो द्रव्य है वो स्निग्ध होता है, या फिर मधुर रस का द्रव्य जो है वो रसयुक्त होता है, या फिर तिक्त रस का है कषाय रस का द्रव्य है वो खर होता है, रुक्ष होता है, वो वात बढ़ाने वाला होता है। तो ये जो गुण या फिर कर्म है, ये गुण के आश्रित, क्योंकि रस भी एक गुण ही है, तो गुण के आश्रित न रहते हुए वो द्रव्य के आश्रित रहते हैं, ये कर्ता का अभिप्राय है। ये हमें यहाँ पे समझ में आता है। और वो बताने के लिए उन्होंने एक श्लोक लिखा है। इसका मतलब ऐसा है, अतश्च प्रकृतम बुद्ध्वा देश कालांतराणि च तंत्रकर्तृः अभिप्रायान् उपायांश्च अर्थमादिशेत। तो यहाँ पे
तंत्रकर्ता का जो कुछ अभिप्राय है उसके लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। तंत्रकर्तुः अभिप्रायान, तंत्रकर्ता का जो अभिप्राय है उसके लिए जो उपाय बताए गए हैं उससे हमें अर्थ समझना चाहिए। उससे हमें जो श्लोक है, जो वाक्य है, उनका अर्थ हमें समझते हुए ग्रंथ को समझना चाहिए। तो यहाँ पे उपाय, इस शब्द का अर्थ हम जानेंगे। उपायान इति शास्त्र उपायान, तंत्र युक्ति उपायान। तो तंत्र युक्ति के जो उपाय हैं वो हमें समझते हुए अर्थ को जानना चाहिए। तो ये भी एक तंत्र युक्ति, ये भी है एक वाक्याधिकरण यहाँ पे बताया गया है जिसमें तंत्र युक्ति का महत्व इस श्लोक में या फिर इस वाक्य में आया हुआ हमें दिखाई देता है। तो इस प्रकार हमें हर एक शब्द का, हर एक वाक्य को समझने के लिए तंत्र युक्ति की सहायता लेनी चाहिए। तभी हमें पूरे ग्रंथ का ज्ञान बिना दिक्कत हो जाएगा। ग्रंथ के ज्ञान होने में कोई भी संभ्रम नहीं होगा और पूरा अर्थ हमें यथार्थ ज्ञान जो और ग्रंथकर्ता को जो अभिप्रेत है वो ज्ञान हमें हो पाएगा। तो इसके लिए हमें तंत्र युक्ति का अध्ययन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी के लिए ये पहली जो तंत्र युक्ति है जिसे अधिकरण तंत्र युक्ति कहा गया है उसका वर्णन यहाँ पे अभी हमने किया। तो यहाँ पे अभी हम रुकते हैं। किसी को अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। एक तो अगर किसी को कोई प्रश्न है तो वो ग्रुप पे डाल सकते एक हैं तो जो या मैंने फिर बताया वो सब समझ में आया, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आया। नहीं मैम आया समझ में। हाँ मैम एक्चुअली क्या है, हमारा जो आज ओपन है ना, तो जो माइक है वो सबके लिए बंद है, तो इसलिए कोई रिप्लाई नहीं देगा है। कल से हम माइक भी चालू रखेंगे सबका। ओके ओके और यदि किसी को सवाल है तो आप रजिस्टर्ड ग्रुप में डाल सकते हैं, या फिर जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं। यूट्यूब लाइव चालू है अभी आयुपीडिया इस यूट्यूब चैनल पे, तो आप वहाँ पे भी डाल सकते हैं। तो मैम तक हम क्वेश्चन पहुंचाएंगे तो जरूर आपको उसका उत्तर मिल जाए। थैंक यू वेरी मच मैम। खुशी, you can take over. Yeah, thank you so much, ma'am, for your valuable time and an amazing session. बहुत खूबसूरत था ये सेशन और इट्स आवर ऑनर कि हमें ये अटेंड करने मिला। अभी स्क्रीन पे कुछ स्लाइड्स दिखाई जाएगी, वहाँ पे आयुपीडिया का कॉन्टैक्ट नंबर और सोशल मीडिया हैंडल्स शेयर किए जाएंगे। अगर किसी को कोई भी डाउट्स हो या कुछ क्वेरी हो तो हमें उस हैंडल पे कॉन्टैक्ट करें। And I hereby conclude this session, and I hope to see you all tomorrow at another wonderful session of Tantra Yukti Adhyayan. Thank you everyone. Wish you a good night.